working with array and string. First of all, you know very well what is array. Array का symbol क्या होता है? Square and Square string का bracket. double quote. राइट है, ऐसा कुछ हमने लर्न किया था. स्ट्रिंग मीन्स व्हाट? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर. अदरवाइज यू कैन आल्सो टेल फॉर सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर. Right? Let us start for first of all introduce what is array and string. Array also have two types. First 1D and 2D. 1D that means what? One dimensional. 2D that means two dimensional. And what is a string? That is a indicated with double quote, surrounded for double quote. And first of all, what is a 1D? We can learn it, and 2D, and then point to remember. Majority point is cover it. 1D inside one bracket available. 2D inside two bracket available. One another bracket available that call for multi-dimensional. More than two. Two or more than two. That go for multi-dimensional, not 3D. Right? And then half chapter here is array, this point, and then we connect with string. What is a string? As well as string class and methods. As well as we learn for date class also and calendar class also. Right? Let us start for first of all main point. What is your first of all array and string? You learn about first of all basic data type in Java. How many types of the basic data type? Chapter number 7, 8, 8. right? That is called for basic data type. But we learn about here composite data type. That is a two-part array and string. Array and string. What is a composite data type? That can be used to store the collection of more than one data value. Same type but more than one data type. Example, array is a variable represent the collection of homogeneous type of the data type. That means what? Similar data type. Maybe sometimes it's called for vector also, matrix also, and multi-dimensional. Right? Multi-dimensional, that go for multi-dimensional vector, matrix, and multi-dimensional. Well, vector is one dimensional, that go for 1D. Now, anyone ask you what is your another name of 1D? Vector. What is a vector? That go for one dimensional. Then, like it can show for characters and numbers, etc. What is a matrix? Matrix is represent two dimensional. I think you learn about for in standard 12 matrix chapter mathematics, right? It's the same. Matrix is represent for two dimensional. That data structure is like table. What is a table? Combination of row and column. Both definitions are important. Vector is a one dimensional and two dimensional. That go for matrix, right? Same. First of all, declare the array and create the object. Declare and create object, and then you can specify using new operator, and you can utilize for directly. I know very well you are not understand. That is a declaration object. Example, we declare the variable like integer x, and x equal to 10. Same. Here is condition is we declare the variable object, right? And then we can assign
variable of value. Same, we can first of all declare the array object, and then we can use using new operator we can assign size as well as contain. How it is possible? I already informed you. Like example, integer marks. This process for declaration, and using new keyword we can assign options marks equal to new integer 5. Now I am asking you, what is the array name? What is array name? Marks. That go for array names. What is the array size? 5. 5. Now anyone ask you what is the marks size in byte? Yeah, memory. Then integer how many byte? 4 multiply 5. Now how many byte reserved for marks? 20. 20 byte. 20 bytes. Again I can recall it. First of all, now when anyone asks you what is the mark size, array size, then 5. What is the marks size in byte? Yeah, memory. Answer is a 20. Right? It is important. Next example, you can write for in single line also, like integer marks equal to new integer 5. But your wish is this bracket is removed here, and then we can put the front of the marks. You can add it. It is also right. Both are. Why? We can add for row or. Here also same. Your memory size 5. Array size is 5. But byte inside marks 5 multiply 4. That go for 20 byte. Okay? You understand what can I tell you? Yes or no? I am audible or not? Okay. 5 multiply 4. Same integer marks, and we can assign directly memory space, directly value, right? Here is not specified any kind of the limitation. Bracket is empty, and then we can assign the value also. It is also white method. I give best example. You know what is how many types of the loop available? How many types of the loop? Entry and exit. Chapter number 7. Like for, while, and do while. Right? Entry okay, inside for as well as while, and exit control that call for do while. Right? What is the class name? Class name Array 1. array 1, and program name. Array 1 dot jar. Okay, bracket start bracket over, then public static void main, same thing as integer marks new integer 7. Your array name is marks array size 7, byte size 7 multiply 4. How many bytes reserved for marks? 28. 28. Now we can use for loop for integer I equal to 0. A starting value for array size is 0, and then I less than 7 till we can go to 6. But how many times loop is rotated? 0 to 6. That means what? How many times? 0 to 6. That means what? How many times loop we can rotate? 7 times.
Why? We can use for less than 7, less than 7, right? And I plus plus. Which type of the I plus plus? Pre या post? Pre या post? Post, right? Okay. Then system.out.println marks bracket start for the same plus I, that is a loop, and marks I. Marks I, that means what? No, that means what? No value assigned. You cannot use for any kind of the value. That's why here is declared blank. Let us start for type this program in Syntec. Voice आ रहा है मेरा? Yes. Okay. Now help me and inform me which kind of the we can program type it. क्लास का नाम A1, तो मैं क्या टाइप कर दूंगा? कैपिटल A1. नेक्स्ट लाइन ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट ओवर. You can type for A1 dot Java. Java. Okay. Capital या small? Small. Public static void main. String argues या s. Bracket star bracket over. Common rules. Now we can declare the array. Declare array marks. First step, integer marks bracket start bracket over. Next, provide space, otherwise memory. Right? Otherwise size, otherwise space. You can tell for anything. Otherwise size. That's why we can use for marks equal to new operator. We can use integer. How many size? 7. 7. I can write for in 10 also. Next line. For loop is started for how many points? Integer. Now I can change for calls. Call for column equal to 0. Less than I less than 10. How many times loop rotated? How many times? 10 10. 10 times. 0 to 9. And increment. Pre या post? System dot out dot print ln. You can write for here in marks and square bracket. Next line plus I plus bracket start
प्लस marks small is a array name. Marks last we can add it for array name and I. It is good. आप तो बोलोगे चलिए तो देख के टाइप किया, बट अभी हम इसमें समझने की ट्राई करते हैं. Tools compile lots of error here. Why? मैंने यहाँ पे इंडिकेटर क्या किया है, कॉल्स, और यहाँ पे क्या लिखा है, कॉल. यस, सब जगह पे कॉल्स क्यों लिखा है, कॉलम. Here also same. Save. Tools come. Same here also. यहाँ पे क्या इंडिकेट करेंगे, कॉल्स. Clear. Compile. Exit go to 0. Then go. Right. Same. Again we can edit the output. Clear screen. And go. By default integer value 0. 0. Okay, we not added the any kind of the array value. Okay, यहाँ तक कोई क्वेरी? जो अभी टेक्स्ट बुक में सेम मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, जिसे आपको मैं अभी क्वेरी समझाना चाहता हूँ, तो इसको कैसे सॉर्ट करना है एरे के अंदर, ये सब क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि एक ही प्रोग्राम में मैं कई सारे पॉइंट समझाने की ट्राई कर रहा हूँ. ओके, ये 2 लाइन नहीं लिखना हो आपको और इसको सिंगल लाइन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं हम, ये मैं कमेंट में डाल रहा हूँ, आप हेल्प कर सकते हो इसको. int marks equal to new int इंटीजर मार्क्स equal to new int डायरेक्टली इक्वल टू यस न्यू और int ब्रैकेट 10. एंड ब्रैकेट 4 एंड सेमीकोलन. लो चेक करते हैं, कंपाइल, एग्जिट कोड. यहाँ तो एरर आने लगी, क्यों ऐसा? बोलो, इसको मना कर रहा है वो. तो मैं अपने यहाँ पे यही समझा था, जब आप सिंगल लाइन में लिखना चाहते हो, देखो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटीजर मार्क्स इक्वल टू न्यू इंटीजर 10. तो यहाँ पे तो मना कर रहा है वो, क्यों ऐसा, क्या एरर आ रही है? एरर आइडेंटिफाई करो तो अभी. मार्क्स के बाद एरे नहीं किया, मार्क्स के बाद स्क्वायर ब्रैकेट करना है. यस, ठीक है, वो वापस एरर ही डिक्लेयर है, रोज कंप्यूटर को कुछ नहीं मालूम पड़ेगा, राइट. अभी यहाँ पे ये एरर है, देखो यहाँ पे समझ में आ जाता है. ओके, यहाँ से आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाए. ओके, आंसर दोनों में सेम. तो आपको यही समझाना था, देखो ये भी लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 2 लाइन, उसको सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, इसके लिए ये सब क्लैरिफाई करते जाना है और नेक्स्ट प्रोग्राम हमको समझते जाना है. आपकी विषय सर ब्रैकेट यहाँ पे नहीं, मुझको यहाँ पे ऐड करना, कर सकता हूँ मैं? यस. ओके, हमने आगे वाले में भी स्ट्रिंग में किया था. कंपाइल करते हैं, आउटपुट सेम आएगा. क्लियर है इतना? यस. ओके, बट मैं आप यहाँ पे एक नया ऑप्शन भी सोचना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कोई वैल्यू असाइन कर देता हूँ. न्यू ऑपरेटर का यूज नहीं करना है. क्या नहीं करना है? न्यू ऑपरेटर का मुझको यूज नहीं करना है. और न्यू ऑपरेटर का यूज किए बिना डायरेक्टली मुझको ये सब असाइन कर देना है. तो इसके लिए सिंटेक्स ये थी. तो देखिए, ये हमने 2 लाइन में लिखा, इंटीजर मार्क्स एंड मार्क्स इक्वल टू न्यू इंटीजर 10, ये भी राइट है. ब्रैकेट आप फ्रंट साइड कर दो तो भी चलेगा,
बैक साइड यूज करो तो भी चलेगा, बट अभी तो मैं यहाँ पे क्या समझाने की ट्राई करूँ, ब्रैकेट को करना ही नहीं है। दिख रहा है भैया आपको, इंटीजर मार्क्स इक्वल टू डायरेक्टली क्या कर देना है, 10 वैल्यू असाइन करनी है। समझ में आ रहा है आपको क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको भी कमेंट में डाल देते हैं, हेल्प करो प्लीज। इंटीजर मार्क्स क्या करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट के अंदर हम क्या लिख देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ब्रैकेट को ओवर। देखो अलग अलग वैरायटी है, टूल्स में जाके क्लियर, कंपाइल, ये सॉरी कंपाइल, एग्जिट को 0 और आउट। समझ में आया आपको, पहले वैल्यू फिक्स नहीं थी इंटीजर की, इसलिए आंसर क्या आ रहा था 0 0 0 0, और अभी मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन कर रहा हूं विदाउट न्यू ऑपरेटर, तो ये भी राइट है। समझ में आ रहा है आपको क्या क्या मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं, मैंने न्यू ऑपरेटर का यूज नहीं किया और वैल्यू असाइन कर रहा हूं, तो ये चलेगा। ओके, ये भी कमेंट में डाल रहा हूं, ये भी कमेंट में डाल रहा हूं, और मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में चले जाता हूं। मेरी पीछे सर ये ब्रैकेट को आगे नहीं लेना है, पीछे की साइड ले लेना है, यहाँ पे ले लेते हैं, शुरू करते हैं। क्या लग रहा है आउटपुट एग्जिट कर 0 आ जाएगा, यस। तो यही तो हमको प्रोग्राम समझना है। ये आपने जो प्रोग्राम टाइप करवाया था ना मैंने, इसमें यही सब समझाया हुआ है, कितने अलग अलग मेथड से सब कुछ क्लैरिफाई किया है, वो अभी आपको क्लियर होना चाहिए आपको कौन सा सूट हो रहा है। अरे सबका मीनिंग एक ही होता है, समझ लेते हैं यहाँ पर भी। जैसे ये कमेंट के अंदर मैंने इसके लिए डाल रहा हूँ, जैसे वन बाय वन आपको समझ में आने लगेगा। ये ब्रैकेट को आपने आगे लिया था, उसकी जगह पे हम इसको पीछे लेते हैं। तो ये हुआ उसका मेन। तो ये पहले एरे डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के बाद उसको न्यू से स्पेस दिया। ये भी राइट है, वो आप 2 लाइन नहीं लिखना चाहते वो नहीं, तो इसको सिंगल लाइन में खत्म कर देना है। ओके, ये 2 ब्रैकेट करना है फ्रंट साइड, और सेम यहाँ पे पीछे भी कर सकते हो, तो ये भी राइट है। न्यू नाम का कीवर्ड यूज नहीं करना चाहते, डायरेक्टली मार्क के साथ वैल्यूएशन करना, ये भी राइट है। और ब्रैकेट आगे आप कंप्लीट करोगे तो भी आंसर तो आ ही जाएगा। तो अलग अलग मेथड से एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कौन से राइट मेथड है, कौन सी रॉन्ग मेथड है। समझ में आ रहा है आपको, यस या नो? स्मॉल चेंजेस में कर देता हूँ, ब्रैकेट के अंदर डबल ब्रैकेट कर देता हूँ, राइट है। यहाँ पे भी मैं कुछ अलग ट्राई करने की कर रहा हूँ, यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स दोनों है, चलो इसमें रहने दो, अदरवाइज वापस कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ तक कोई क्वेरी? कोई क्वेरी नहीं है। ये नो सर। फोर लूप को माइनस करना हो तो मैं क्या क्या चेंज करूँ फोर लूप के अंदर, चलिए समझा दो। तो मैं यहाँ पे 10 कर दूं, यहाँ पे 0 करूँ, समझते थे ना, और माइनस माइनस करता हूँ। ये राइट है, मैंने राइट लिखा हुआ, नो। क्या मिस्टेक है इसमें? और एग्जिट करो तो 0 आ गया, आप तो नो बोल रहे हो, वो ये भी 0 है। देखो टूल्स में जाके मैं कंपाइल कर दूं तो भी 0 आ रहा है, टूल्स में जाके गो करो तो भी 0 ही आ रहा है। दिख रहा है आउटपुट? नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है चैप्टर नंबर 10, एक्सेप्शन हैंडलिंग। एग्जिट को 0 आने के बाद भी राइट आउटपुट दिए, क्या मिस्टेक है मालूम है इसमें? यहाँ लेस देन नहीं आएगा, क्या आएगा? ग्रेटर देन। क्या आएगा?
धीरे धीरे मैं 10 से स्टार्ट कर रहा हूँ और 0 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले मैं सेम सीक्वेंस 0 to 10 जा रहा था, अभी मैं 10 to 0 जा रहा हूँ, पर मैंने ये माइनस माइनस किया ना, चलिए आउटपुट देख के लेते हैं, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। कंपाइल, तो भी सेम एरर क्यों ऐसा? समझ में आ रहा है कुछ? नहीं क्लियर हुआ? लेजर आता है, ग्रेटर देन आता है। हेलो स्टूडेंट, अभी चलो मैं समझा देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं करना। ग्रेटर देन आएगा, कंडीशन ट्रू कब होती है, फॉल्स कौन सी होती है, हमको डिसाइड करना है। क्या है? एरे इंडेक्स आउट बाउंड, ये एरर है। ओके, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ये एरर है। वो हम नेक्स्ट पॉइंट एग्जिट को 0 भी आने के बाद, एग्जिट को 0 आने के बाद भी एरर आती है और बाद में 1 आती है। हाँ? तो ये सब कुछ मैं इसके लिए क्लैरिफाई करवा रहा हूँ, तो आपको नेक्स्ट पॉइंट के अंदर ये सब समझ में आने लगेगा। ओके, तो 0 से 10 तक से 9 तक जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडेक्स आउट बाउंड दिखा रहा है, राइट? बट इसकी जगह पे मैं इसको कमेंट में डाल देता हूँ और इसको री ओपन कर देता हूँ और भी चेक करते हैं। तो ये सब टेस्टिंग करना है, तभी ये सब पॉइंट समझ में आएगा। एग्जीक्यूट 0 सेम, बट मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ और यहाँ पे 10 करके आई प्लस प्लस कर देता हूँ। क्या रहेगा आउट? आंसर राइट है, तो भी कुछ नहीं आया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? लेस देन। लेस देन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? मैं क्या समझाने की ट्राई कर रहा हूँ आपको? यस। कंडीशन ट्रू होगी तभी वो क्लैरिफाई करेंगे, कंडीशन फॉल्स होगा तो नहीं। और एरे ना, एरे कंटिन्यूस मेमोरी स्टोर करता है, 0 1 2, ये नंबरिंग मैंने नहीं दिया, मैंने तो स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज एरे के लिए यहाँ पे इक्वल टू कर देता तो कितनी बार रोटेशन होता, लूप कितनी बार घूमता? 11 टाइम के 10 टाइम। यहाँ पे एरर आ रही है आउटपुट के साथ, क्या आ रहे है? एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड। क्यों ऐसा आ रहा है? मैंने ऊपर एरे की साइज 10 रखी है और मैं इसको 11 टाइम घुमाने की ट्राई कर रहा हूँ, देखिए अभी, और ये अभी एग्जिट पर 0। तो ये सब ध्यान रखना। अभी आ गया ना आंसर? यस या नो? तो ऊपर जो साइज आपने लिखा ना, उसके हिसाब से लूप घुमाने का। मैंने यहाँ पे एरे डिक्लेयर किया 9 और लूप घुमाने की ट्राई करो 10, तो देखो एरर यहाँ पे दिख रहा है। पूरा नेक्स्ट चैप्टर इसके ऊपर डिपेंड है। आपको सेम जैसे दिख रहा है पर वो सेम नहीं है। 8 तक चला गया, 8 तक चला गया, 10 के बाद एरर आ रही है। अभी जैसे एग्जाम्पल, ये मेरे कंप्यूटर का क्लासेस के अंदर, ओके, 100 स्टूडेंट की स्पेस है और मैं स्पेस, ज्यादा बच्चे आ गए, ज्यादा एडमिशन हो गए और 200 हो गए, तो कहाँ पे मैं बिठाऊंगा ये सबको? समझ में आ रहा है? इसके जैसा है, मैं डिक्लेयर करता हूँ 9 को और स्टोर करता हूँ 10 को, 10 टाइम उसको मैं रिकॉल करने की ट्राई कर रहा हूँ, तो ये एरर बोलते हैं, इसको बोलते हैं एरर। ओके, तो यहाँ तक तो राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जीक्यूट 0 के बाद ये वार्निंग मिलती है, इसको बोला जाता है एक्सेप्शन। दिख रहा है यहाँ पे? तो ये नेक्स्ट प्रैक्टिकल के अंदर अभी हमको चेक करना है। तो ये सब प्रोग्राम आपको ऐसे ही स्टडी करने पड़ेगी, समझने पड़ेगी, इसके बाद ही पॉइंट क्लैरिफाई होगा। तो हमने फर्स्ट प्रोग्राम में क्लैरिफाई किया और यहाँ पे कई सारे रूल्स है, मैंने आपको समझा दिए। जैसे मैं एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं, एरे की साइज कितनी है वो डिक्लेयर नहीं किया, ब्लैंक है ना, तो क्वेश्चन मार्क है। पर वैल्यू कितनी डिक्लेयर कर दी है? बोलो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट 5। एरे की इंडेक्स स्टार्ट कहां से होती है? ऑलवेज 0 से, और वो सीक्वेंस में ही होना चाहिए, और सीक्वेंस में ही है। ओके, मैं लिखता हूं मार्क्स 0। जैसे एग्जाम्पल, मैं आपके नाम से बुलाऊं या रोल नंबर से बुलाऊं, दोनों है तो सेम ही ना।
मैं ऐसे बोलूँगा चलो पुनिक और रोल नंबर 1, तो मैं 1 से बोलूंगा तो भी वो पुनिक आएगा, और पुनिक से बोलूंगा तो भी वही आएगा, है ना? राइट है या रॉन्ग? Yes. राइट है। तो यहाँ पर भी इसके जैसा ही है। मैं अभी जो काम करने वाला हूँ ना, तो उसके एरे के कंटेंट से काम नहीं करूंगा, एरे के रेफरेंस एलिमेंट से या इंडेक्स वैल्यू से काम करने वाला हूँ। एरे के इंडेक्स, इसको दैट कॉल फॉर वन डायमेंशनल। अभी जो प्रोग्राम हम समझ रहे हैं वो वन डायमेंशनल का है। एक ही प्रोग्राम में मैंने कई सारे पॉइंट्स आपको समझा दिए। इसके लिए मोस्ट देखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीजर मार्क वैल्यू असाइन करके और ब्रैकेट को आगे ले ले, दोनों में इतना ही डिफरेंट है। और वैल्यू असाइन करने के लिए आपको कौन सा ब्रैकेट यूज करना है? कर्ली ब्रैकेट को यूज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट्स आपके क्लैरिफाई करना है। और बाद में यहाँ पे भी इसके जैसा ही ये प्रोग्राम समझना इंपॉर्टेंट है। क्या डिफरेंट है मुझको समझाओ ना, क्लैरिफाई आपको करना है स्टूडेंट। ये क्लास का नाम क्या है? Array 2. राइट, सेव करके एरे 2। ये क्लास के अंदर मेथड कितनी है? डिस्प्ले नाम की मेथड है। मेथड का आगे क्या लगाया है? Static void. स्टैटिक। तो ये कौन सी मेथड बन जाती है? Class method. क्लास में इसमें आर्ग्यूमेंट कितनी है? आर्ग्यूमेंट 2. 2। ओके, चले। ये आर्ग्यूमेंट कहां से आएगी? यहां से आएगी। देखिए ये मार्क्स 1, तो यहाँ पे साइज कितनी है? वो यहाँ से 3. 3। ओके, चलिए। तो ये हमने क्लैरिफाई किया। अभी देखना अच्छी तरह जो मैं समझाना चाहता हूँ। और एवरी टाइम डिस्प्ले को कॉल किया। देखो यहाँ पे डिस्प्ले ये 1 टाइम यूज किया, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम एंड 5 टाइम। क्यों? क्योंकि एक मार्क्स 1 के लिए, मार्क्स 2 के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए। चलो गुड। चलो अभी हम क्लैरिफाई करते हैं इसके अंदर। डिफरेंट मुझको समझाना है आपको, क्या डिफरेंट है। ऑटोमेटिकली प्रोग्राम याद रह जाएगा। जो आप बोले ना सर इसको इतना बड़े प्रोग्राम को कैसे याद रखेंगे, ठीक है, थोड़ा ब्लर है, पर आप अपने रेफरेंस बुक में भी देख सकते हो। क्या दिखा है यहाँ पे? देखो तो, इंटीजर मार्क्स 1 इक्वल टू न्यू इंटीजर 3, है ना? ये 3 लाइन को मुझको डिस्प्ले नहीं करना हो, ये 2 लाइन को डिस्प्ले, उसकी जगह पे मैं सिंगल लाइन में लिख सकते हो ऐसे। यस या नो? ये भी राइट और ये भी राइट। ओके, मैं ये ब्रैकेट को आगे ले सकता हूँ। यस, तो मार्क्स 3 में देखो ये ब्रैकेट आगे आ गया, तो ये भी राइट है। बट मेरी भी से न्यू ऑपरेटर का यूज करना ही नहीं है सर, और विदाउट न्यू मार्क्स 4 के अंदर वैल्यू असाइन करना है, ये भी राइट है। और ब्रैकेट आगे ले लेते हो तो ये भी राइट है। टोटल मार्क्स कितने हैं? 5, राइट है। मार्क्स 1 2 3 4 5, इसमें अलग अलग रिप्रेजेंट। देखिए मार्क्स 1 का आउटपुट ये है 0 0 0, क्योंकि कोई भी वैल्यू असाइन नहीं किया है। और हमने चैप्टर 7 के अंदर बोला था फ्लोट की वैल्यू क्या होती है? डिफॉल्ट 0.0, राइट है। इंटीजर की 0 ही होती है, तो ये 0। जैसे हमने वैल्यू असाइन कर दिया तो ये यहाँ पे 50 60 एंड 70, और मार्क्स 5 के अंदर भी ऐसा ही है 70 80 एंड 90। क्लियर है? तो ये हुआ उसका मीन। इसके लिए आपको 1 टाइम फॉर लूप घुमाना पड़ता है। इंटीजर i इक्वल टू 0, साइज जो भी हो i प्लस प्लस, और इसके अंदर जो भी लिखोगे वो आप रोटेशन करना स्टार्ट करोगे। आई होप सो ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको, इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं है, राइट है। अभी उसके जैसा सिमिलर 2 डायमेंशनल की ट्राई कर रहे हैं। कौन सा? 2 डायमेंशनल, दैट गो फॉर 2D। पर इसके अलावा यहाँ पे कई सारे एक एग्जाम्पल भी है जिसको हम यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है ना, उसमें 10 नंबर आपको लेना है। यहाँ पे डबल का यूज करके, डबल के अंदर पॉइंट किया हुआ है, सबका टोटल करना है, टोटल डिवाइड बाय 10 करके उसकी एवरेज निकालनी है। जैसे यहाँ पे ये टोटल 10 नंबर एंटर कर दिया, प्रोग्राम आप मुझको नेक्स्ट टाइम समझाना, ये टाइप नहीं किया पर अभी समझना है। 10 टाइम हमने एंट्री की रैंडमली, यहाँ पे मैन्युअली रैंडम कर दी,
और बाद में उसको डिवीजन के थ्रू यहाँ पे क्लैरिफाई किया, ये डिवाइड किया है, डिवाइड बाय 10। ओके, चलिए सेम यहाँ पे दो टाइप की अलग मेथड है। क्या मेथड का नाम? sort and fill. फिल। और इसके लिए रेडीमेड क्लास है, क्या नाम है? जावा डॉट यूटिल डॉट एरे डॉट क्लास। उसके अंदर से ये ऑप्शन निकल सकते हैं। नहीं सर नहीं समझ में आया, ओके चलो मैं ट्राई करता हूँ समझाने के लिए। इसके लिए ना आपको दो मेथड को यूज करना पड़ेगा, छोटे से ब्लर ऑप्शन में समझा देता हूँ। जब आपको इसको समझना हो आपको ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा, ये सॉर्ट और फिल। हम इंडेक्स के साथ काम करने वाले हैं, देखो यहाँ पे लिखा है। ओके, मैं अभी आपका नाम नहीं बोलूंगा और आपका रोल नंबर बोल दूं तो भी चलेगा। यहाँ पे दो मेथड है ओके सर्च करने के लिए। ओके, और ये इसका ऑप्शन है। इसके लिए इसमें एरे डॉट यूटिल यूज करना पड़ता है। ये प्रोग्राम जब हम डायरेक्टली फेस टू फेस मिलेंगे तो वापस मैं आपको रिकॉल करवा दूंगा। ओके, देयरफॉर फॉर सर्चिंग द एलिमेंट इन एरे, एलिमेंट मींस व्हाट? इंडेक्स। उसके जो कंटेंट उसके साथ जॉइंट है ना, उसके साथ। ये कौन सा डायमेंशनल है? 2D। 2D का दूसरा नाम मैंने क्या बोला? मैट्रिक्स, राइट है? 2D जो टेबल फॉर्मेट में अदरवाइज टेबुलर रोज एंड कॉलम्स के अंदर स्टोर होता है। एग्जांपल देते हैं, देखिए यहाँ पे कितने स्टूडेंट है? 5. 5 स्टूडेंट है। और टेस्ट कितनी है? 3. तो मैं आपको बोल सकता हूँ यहाँ पे रो कितनी है? ये हेडिंग को निकाल के 5. 5 रो है। ओके, तो इसका मीनिंग मैं नाम रख देता हूँ R0। देख रहा है, अच्छी तरह समझ लेना। R0, R1, R2, R3, R4। तो इसको क्या बोलते हैं? कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2। इसका नंबरिंग ऐसे होता है 0 0 0 1 0 2। तो इसका क्या आएगा? 1 0, पहले रो पहले 1 1, याद रखना, ये सब याद रहेगा, करना है हमको। 1 2, बाद में 2 0 2 1 एंड 2 2। सेम 3 0 3 1। ये तो है सर, मैच में है मैट्रिक्स। इसको मैट्रिक्स तो बोलते हैं, आता है ना ऐसा? हाँ सेम। Yes. हाँ, तो ये मैट्रिक्स ही है। अभी मैं बोलूं 35 की वैल्यू क्या होती है, उसका इंडेक्स वैल्यू क्या है? उसका आंसर आता है 1 एंड 0। मैं आपको बोलूं 19 है, इसका इंडेक्स वैल्यू क्या है? 3 2, और उसमें पैरिंग 2 ब्रैकेट आता है। ओके, बट मैं यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ, अच्छी तरह समझना स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखो मार्क्स है वो कौन सी कैटेगरी का एरे है, 1D या 2D? 1D. 1D नहीं है यहाँ पे। देखो मार्क्स 2D है, कितने ब्रैकेट है? 2 हाँ, तो ये क्या हुआ? 2D एरे। 2D। ओके, ये जो 5 है ना वो रो इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? पहले रो। जो 3 है ना वो कॉलम है। अभी मैं आपको पूछूं ये 2D एरे की साइज कितनी है, तो आपको क्या करना है? रो मल्टीप्लाई कॉलम, रो मल्टीप्लाई कॉलम। तो एरे की साइज कितनी है? अभी तो बोलो, टेबल के अंदर सेल कितने बनेंगे? 15। कितने बनेंगे? 15। 5 रो है, 3 कॉलम है, तो 5 मल्टीप्लाई 3, टोटल कितनी यहाँ पे सेल बनेंगे? 15। समझना है? बट आपको पूछा गया मेमोरी लोकेशन कितना है, वो भी बाइट में, तो क्या आएगा?
15 मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा 4। सर 4 कहां से लाया हमें इंटीजर की साइड, तो 5 मल्टीप्लाई 3 करो पहले और बाद में 4 करो, तो आंसर क्या आएगा 60 बाइट। 16 बाइट। एग्जाम में पूछा जा सकता है, 110 पूछा जा सकता है। ओके, तो ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसके लिए ये पॉइंट समझना और टाइपिंग करना इंपॉर्टेंट था। ओके, ये क्लियर हुआ? यस या नो? यस। अभी टेबल का स्ट्रक्चर है ना, वो यहाँ से है, देखो ऐसे होता है, 0 0 पहले रो आते हैं, ये पहले रो वाइज, ये कॉलम है, ये कॉलम फिक्स, तो ये रो वाइज होता है, रो 0 1 2 0 1 2, पर सबका एड्रेस अलग है। जैसे मैं एग्जाम में आपको पूछूं 4 1 का एड्रेस क्या आएगा 50 आएगा, 1 1 का एड्रेस क्या आएगा 30 आएगा। यस या नो? थोड़ा थोड़ा पॉइंट समझ में आ रहा है? अभी मुझको ये प्रोग्राम समझाओ ना, मैं बाद में समझ लूंगा कि आपको आता है कि नहीं आता। ठीक है, जितना हो सकता है तो मैंने जूम कर दिया। ओके, क्लास का नाम क्या है? एरे 2D। ओके, कितने ब्रैकेट है इसके अंदर? 2। 2। ओके, ये दो लाइन है, इंटीजर मार्क्स 1 इक्वल टू ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट ओवर ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट ओवर, पर ये नहीं लिखना हो मुझको तो नेक्स्ट लाइन में मैं लिख दूंगा मार्क्स 2, इंटीजर मार्क्स 2 इक्वल टू न्यू इंटीजर 5 3, राइट है? मैं आपको बोलूं मार्क्स 1 में रो कितनी है? 5। कॉलम कितनी है? 3। 3। मैं आपको ऐसे बोलूं मार्क्स 2 की टोटल एरे साइज कितनी है? 15 into 4 60। यस, 5 and 3 टोटल हुआ 15, एरे साइज पूछ रहा हूँ 15। बट मैं ऐसे बोलूं मार्क्स 3 की बाइट में मेमोरी साइज कितनी है? तो 60। आपको 15 मल्टीप्लाई इंटीजर की कितनी है 4, इसके 4। लिए है ना आगे वाला टेबल क्लियर होना चाहिए। इसके लिए ये 7.1 है, टेबल मोस्ट एम्पियर 15। और आप न्यू वर्ड का यूज नहीं करना चाहते हैं डायरेक्टली, पर यहाँ पे ये देखना, ये जो सेमीकोलन ना, रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 एंड रो 5, टोटल 5 रो बन गई मार्क्स 5 के अंदर, पर न्यू ऑपरेटर का यूज नहीं किया, सेम हमने यहाँ पे किया। ये 5 रो 3 कॉलम 5 रो 3 यस। कॉलम, ओके, न्यू ऑपरेटर। पर यहाँ पे एक ध्यान ये रखना है, तो फर्स्ट फोर लूप है ना, ये वो रो के लिए है, इसके इंसर्ट है ना, ये कॉलम के लिए है, तो इसको एक कंसेप्ट को क्या बोला जाता है नेस्टेड फोर लूप। फोर लूप के अंदर फोर लूप है, समझ में आ रहा है आपको? नो। फोर लूप के इनसाइड फोर लूप है, उसको क्या बोला जाता है नेस्टेड फोर लूप। अभी मैं शॉर्ट एंड स्वीट आपको अगेन चार्ट समझा देता हूं, ओके, मे भी आपको समझ में आ ही जाएगा। ट्राई करते हैं, कैसे याद रखने की ट्रिक है, जैसे आप अपनी नोट्स या चार्ट बना रहे हो उसके अंदर मैंने क्लैरिफाई कर लिया हुआ है, कैसे हम समझेंगे ये सब। जावा के अंदर डेटा टाइप कितने हैं बोलो? 8। 8। 9। इसके हिसाब से मैं आपको 4 बना के देता हूं, आपको बोलना है 2। एक प्राइमरी बोल सकते हैं, कंपोजिटिव। यस, वेट करो, थोड़ा सा हैंग हो चुका है। प्राइमरी, अदरवाइज बेसिक, ओके,
ये डेटा टाइप है टोटल 8। याद आ रहा है ऐसा कुछ? बट उसके ऑप्शन में दूसरा कौन सा है? कंपोजिट। ओके, कंपोजिट। उसके अंदर कितनी कैटेगरी है कंपोजिट के अंदर? 2. तो ओके, इसके अंदर भी हम क्लैरिफाई करते हैं। इसमें भी 4 कैटेगरी थी, लाइक एग्जांपल इंटीजर, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर एंड लॉन्ग। याद है ना? इसके बाद क्या था? फ्लोट एंड डबल। और क्या था? कैरेक्टर एंड बुलियन। याद आ रहा है अभी? Yes. बट उसके अपोज में यहाँ पे क्या है? एरे एंड स्ट्रिंग। एरे एंड स्ट्रिंग। तो आपको ऐसे सब क्लैरिफाई करना पड़ेगा जब चार्ट बना रहे हो तो रैंडमली। ओके, तो ये सब यूज कर लेना है। ओके, इसके बाद हमने ये सब भी समझा, ये सब तो क्लियर है। चलो, एरे के टाइप कितने हैं? 1 डायमेंशनल एंड 2 dimension. ओनली फॉर 2 ही है? मैंने वैसे नहीं समझा है। 2D एंड मल्टी डायमेंशनल। याद आया अभी? हमारे सिलेबस में नहीं है, आपको पूछा गया तो 2D। 1D का नाम दूसरा क्या है? वेक्टर। ओके, और इसमें ओनली फॉर एक ही टाइम ब्रेकेट आता है, पर ब्रैकेट 1 टाइम आएगा। ओके, और उसके अंदर भी फोर लूप कितनी बार यूज करना है? ओनली फॉर 1 टाइम। और ये कॉलम वाइज बनता है, कॉलम। ओके, इसको हम कॉलम बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है मैट्रिक्स। इसके अंदर कितने ब्रैकेट आता है? 2. तो इसमें जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट वाला, वो रो इंडिकेट करेगा, सेकंड Second वाला column. कॉलम। ओके, दूसरा इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन था, इसमें कितने फोर लूप चाहिए? 2. 4 इनसाइड 4। ये कंसेप्ट को क्या बोला जाता है? नेस्टेड। Nested for loop. और ये टेबल स्ट्रक्चर में होता है, अदरवाइज Row हम and टेबुलर column. भी बोल सकते हैं। टेबल अदरवाइज टेबुलर, रोज एंड कॉलम्स के अंदर से। समझ आ रहा है आपको पॉइंट? तो ये सब कुछ स्मॉल स्मॉल पॉइंट आपको प्रॉपर याद रखना है। और मल्टी डायमेंशनल हमारे लिए अभी रिस्ट्रिक्शन है। फ्यूचर में आप जावा के अंदर और भी मास्टरी आप लोगे तो ये आपको मल्टी डायमेंशनल, इसमें मिनिमम 2 ब्रैकेट होना चाहिए, इससे भी एक्स्ट्रा आ सकता है। ओके, तो हमारे सिलेबस में इतना डेप्थ में नहीं है। तो ये हुआ आपका मेन पॉइंट। ओके, ये आगे वाला तो दोनों मिक्स ना हो जाए, उसके लिए ध्यान रखना है। इतना समझ में आ गया आपको? इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी? नो? थोड़ा भी नहीं है? ओके, चलिए। तो ये वो उसका मेन न्यूज। तो आपको ये सब चार्ट के थ्रू जब भी आप नोट्स बना रहे हो तो ये सब क्लैरिफाई करते रहना है, जिससे और भी कंसेप्ट क्लियर होते जाए फटाफट। और बाद में हमने इसमें ऐसे भी क्लैरिफाई किया। ओके, इसमें कोई क्वेरी है अभी?
ओके, सबसे इजी मैथड मैंने समझा दिया। जब ये बस इतना समझ में आ गया ना तो 110% आपको कई सारे पॉइंट्स क्लैरिफाई हो चुके हैं। ओके, इसके अंदर क्या और समझना है, ये पॉइंट्स, क्योंकि ABCD करके कोई भी पॉइंट्स आपको पूछा जा सकता है और इसके अंदर भी कई सारे ऑप्शन है। देखो टेबल स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको क्लैरिफाई किया था, टेबल स्ट्रक्चर आपके क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग के बारे में, पर इससे पहले यहाँ पे जावा, C++, बेसिक और पास्कल, ये क्या है, सब लैंग्वेज का नाम है, राइट है। इसमें हम जावा, मैं आपको बोलूँ ये यहाँ पे रो कितनी है, रो कितनी है, 5 रो है। कॉलम कितनी है, ओनली 4 है, नो। हाईएस्ट कौन सी है, यहाँ पे पास्कल, राइट है। तो हमको यहाँ पे 2D एरे का यूज करके, अभी तक हमने डिजिट और पॉइंट के साथ काम किया, अभी हम कैरेक्टर के साथ काम करने वाले हैं। ओके, इसके लिए आपको है ना डिक्लेयर करना पड़ेगा कैरेक्टर नेम्स टू ब्रैकेट, और ऑटोमेटिकली ये एक रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो एंड ये फिफ्थ रो। कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बॉक्स के हिसाब से, टेबल स्ट्रक्चर के हिसाब से पूरा पॉइंट यहाँ पे समझ लेगा। समझ में आ रहा है आपको, थोड़ा थोड़ा पॉइंट क्लियर हो रहा है? हाँ तो बोलो। ये आपको ऐसे कैरेक्टर नेम्स, बट उसकी जगह पे यहाँ पे आप बाइट लग देते हो ना, बाइट, तो ये जावा का 74, स्मॉल ए का ASCII कोड मालूम है, ASCII कोड, बड़ी ASCII कोड, ASCII वैल्यू क्या होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, ये कोड है, जैसे हमारा इंडिया का कोड है +91, ऐसे पूरे वर्ल्ड में एक स्टैंडर्ड है। मैं स्मॉल ए टाइप करूंगा, उसका ASCII कोड क्या है, देखो पास्कल के अंदर है यहाँ पे, तो इसका 97 है। क्लियर, समझ में आ रहा है इतना पॉइंट? ओके, चलिए हम यहाँ पे पॉइंट्स के क्लैरिफाई करने से पहले बस इतना आपके लिए इनफ है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर भी वापस स्विच हो जाएंगे। तो यहाँ से हमको स्ट्रिंग के बारे में समझना है, और ये पॉइंट टू रिमेंबर एक बार रीड कर लो ना प्लीज, फास्ट फॉरवर्ड में। होमोजीनियस एलिमेंट, वैल्यू स्टार्ट 0 से होती है, मल्टी डायमेंशनल, ये सब पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट से हमको स्टार्ट करना है स्ट्रिंग। आई होप सो आपको 100 में से सबसे इजी लैंग्वेज में समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, 100 में से 80% समझ में आया, 60% ये प्लस करते जाओ, चलो गुड। ओके, तो ये पॉइंट आपके क्लैरिफाई हो जाना चाहिए। आई होप सो ये पॉइंट क्लैरिफिकेशन हो चुका है, इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे लेक्चर को स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।